Good morning, students. Today we will do the same topic, that is advertisement writing. But today we will do advertisement writing of to let, sale, and purchase of property. The previous meeting we did advertisement of sale of vehicle or domestic goods or sale of computer, and for today the topic is advertisement writing for to let, sale and purchase of property. What is to let? To let is if a landowner wants to rent out his or her property, that is called to let. And sale and purchase if landowner or the owner want to sell his property. Purchase if anybody wants to purchase the property, that is I think purchasing of property. What for today's topic is crystal clear, I think. Before this, I want to highlight why this particular word is pronounced as advertisement. So, dear students, we are following British accent. If we look at American accent of the same word, that will be advertisement. But we are following British accent. As per British accent, it will be advertisement. Stress should be given for we. But if we look at American accent, then advertisement. Stress is given for eyesment. So I think crystal clear. Next step is just look at the details of today's topic. First of all, we will start with the advertisement. Suppose any landowner want to let out his flat. How that particular advertisement should be drawn, we have to draw line at the right side and write the pin points. जैसे हमने फर्स्ट डे किया था ना कि हमें अगर कोई भी व्हीकल बेचना है, पिन पॉइंट हमें बनाने पड़ेंगे. So we have to design the pin point, because I have already told you people that advertisement is always in phrases or words. We possess no right to use any helping verb. We possess no right to use complete sentences, because we have to pay for each and every word with the exception of address or contact number. So just look at the thing. If we look at to let purpose, यानी रेंटल प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या यूज करना है, पहले सबसे पहले टाइटल देना है. तो then we will be able to give the title to let. And if we want to let में क्या points हम add करेंगे? First of all, I am highlighting this particular advertisement of to let. If any property owner wants to just rent out or let out his flat or house, how to design the advertisement? So first of all, title will be double to your handwriting and simply to let will be mentioned. There should be hyphen between to and let. And the next point, you should be able to look at the thing, type of accommodation. Second step to just fit the point in this advertisement is type of accommodation. कि किस टाइप की accommodation available है. उसके बाद you have to look at the things. Third point, you have to look at details. And the last, rent. Second last. And last is to whom should we contact number or address. Already students, I have told you people that if address is given in the topic, you possess right to use the address. The address should be same. Never use your own address. It is already highlighted. There is no need of repetition of this particular point. Now I think pins are ready for the advertisement of to let. I have already told you somebody wants to let out his flat or house. How to design that particular advertisement? Pin points are ready.
type of accommodation, details, the rent, to whom to contact. Now again start with the next step. Already design a box with pencil and should be able to design the box in a very neat and clean way. So first of all, highlight the title, that is to flat. So suppose the topic is honor of the Bankers Society wants to let out the flat of that particular building. So just design the advertisement. तो ये you might have heard कि societies बनी होती हैं जो flats होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए we have to design the advertisement first. फिर हम independent के लिए बनाएंगे. इससे पहले I want to explain some words. What is flat? Flat क्या होता है? It is I think small unit of a large building. तो जो छोटा सा यूनिट होता है लेकिन इंडिपेंडेंट यूनिट होता है बिग बिल्डिंग का, उसको फ्लैट कहा जाता है. अगर ये वर्ड दूसरा वर्ड देखें, अपार्टमेंट. अपार्टमेंट क्या होता है? इफ वी वांट टू जस्ट लेट आउट सिंगल रूम और 2 रूम सेट फ्रॉम द बिग हाउस, अगर बड़े हाउस है हमारे पास, उसमें से हमने 2 जो रूम थे हमने सेपरेट बना रखे हैं, वो हमने रेंट पे दे दिए, दैट विल बी कॉल्ड अपार्टमेंट. एंड वन मोर, डुप्लेक्स. बेटे क्या होता है डुप्लेक्स? जो डुप्लेक्स होता है वो क्या होता है, वो डबल फ्लोरिंग होती है, उसकी सेकंड फ्लोर तक बना होता है, लेकिन उसकी जो एंट्री होती है फर्स्ट फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की, दोनों की अलग अलग होती है, और उसकी जो किचन होती है या डाइनिंग प्लेस होती है वो एक ही होती है, और लेकिन उसकी डबल फ्लोरिंग होता है. क्रिस्टल क्लियर रिगार्डिंग द डुप्लेक्स. और एक वर्ड और भी होता है बेटा, बंगालो. बंगालो क्या होता है? इट इज अ बिग हाउस विद ऑल द बेस्ट अमेनिटीज. एक गार्डन भी होता है, उसमें स्पेस होती है. द थिंग आई थिंक ईच एंड एवरी थिंग इज इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर जो बंगालो होता है. तो आपको ये 4 तरीके के जो घर होते हैं उसके बारे में जानकारी हो चुकी होगी. यू आर क्रिस्टल क्लियर रिगार्डिंग द थिंग. नाउ लेट अस मूव टू द रियल टॉपिक. So we are designing advertisement. Somebody, the owner of the building wants to let out the flat. तो वो सोसाइटी बनी हुई है उसकी, हाउ टू डिजाइन द एडवर्टीजमेंट. सबसे वही मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, टाइटल. टाइटल इज रेडी. टाइटल के लिए ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट शुड बी डबल टू योर हैंडराइटिंग. तो अब हमें स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ हाउस. टाइप ऑफ हाउस से भी पहले एक पॉइंट आता है कि कहाँ पे है वो. तो ऑलरेडी मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर एनी सोसाइटी यू कैन सपोज एसएल टावर्स, गुरुग्राम. तो ये सोसाइटी का नाम है एसएल टावर्स. गुरुग्राम जो है दैट्स द नेम ऑफ सिटी. तो हमने सबसे पहले जो उसको स्टार्ट किया, कहाँ पे वो जहाँ पे भी हमें रेंट देना है, रेंट के लिए अवेलेबल स्पेस है, कहाँ पे है. एंड सेकेंड पॉइंट शुड बी लुक एट द डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन. 2 BHK. अब बेटा BHK क्या होता है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पर्टिकुलर वर्ड. B means bed, H means hall, and K means kitchen. तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय B मतलब 2 बेडरूम है, वहां पे हॉल है और किचन है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू BHK. ये टाइप ऑफ एकोमोडेशन हो चुका है इसका. एंड आफ्टर टाइप ऑफ एकोमोडेशन you possess right to give the details of that. Detail means you have to highlight
because it is a building, it belongs to society that will be with number of facilities. You can be start with well ventilated, then you can write 24 into park, water and security. So next step is you have to look at the thing because it is this belongs to society. ये society में ये जो flat है वो available है. उसके लिए you can write swimming pool, library, swings, gymnasium, park. तो जो उसके आसपास जो accommodation है, facilities available है, we have to highlight that particular thing in detail. जो physical outlook होगी आसपास की, we have to highlight. Then we have to look at furnished. What is the difference between furnished, unfurnished and semi-furnished? You should be crystal clear. Furnished होता है कि उसको हम रेंट पे लेते हैं. Furnished accommodation हमें सिर्फ अपना सूटकेस लेके जाना है. Every facility will be available in that. From I think kitchen में भी सारी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, बेडरूम्स में जो भी हमें बेड चाहिए होगा, इवन वॉशरूम तक भी एवरी फैसिलिटी विल बी अवेलेबल. तो हमें कोई सामान ले जाने की जरूरत नहीं होगी. फर्निश्ड उसको कहते हैं. सेमी फर्निश्ड क्या होता है? एक और ब्रांड होता है सेमी फर्निश्ड. सेमी फर्निश्ड में क्या होता है कि आपको अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो लेके जाना होगा, लेकिन कुछ चीजें वहां अवेलेबल होंगी. और एक फुली अनफर्निश्ड क्या होता है? अनफर्निश्ड मतलब हमें सारा सामान ही वहां शिफ्ट करना होगा. तो 3 तरीके की अकोमोडेशन होता है. बेसिकली जो सोसाइटीज के फ्लैट होते हैं उसमें दैट दीज आर furnished. You are able to get this, so you have to highlight this particular word furnished. The next point you will have to highlight is, now just look at fully marbled. Complete woodwork and one more you can be able to look at the things. Fully marbled, complete woodwork. You can make in addition of number of points, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने कहा है कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 30 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए जब भी हम एडवर्टीजमेंट देते हैं. तो देन जस्ट कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, रेंट. So rent, it will be good if you will specify the real cost. Whatever rent you want to charge, please, it will be good if we highlight that. क्योंकि मैंने पिछली एड में बताया था कि आपको नेगोशिएबल कहना है. अगर हम वो इस चीज में क्लियर कर दें, दैट विल बी गुड. तो क्योंकि जिसको लेना होगा वो फ्लैट लेगा, नहीं लेना होगा तो वो हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा. इससे हमारी हेडेक भी कम होगा, हमारी बोदरेशन भी कम होगा. तो देन यू हैव टू हाईलाइट, लेकिन उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली. Now, at the rate of 40,000 per month. So you have to look at the accommodation कि हाँ ये accommodation गुरुग्राम में है. तो अगर हम 2 BHK फ्लैट वहाँ अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, we will have to pay at least 40,000 per month. Otherwise, we will not be able to get. Or depends from area to area also. So next, contact. तो ये सारा लिखने के बाद, इतने सारे पॉइंट्स बनाने के बाद मुझे चेकलिस्ट में चेक करना है. जो मैंने चेकलिस्ट बनाया था कि मेरे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेरी सिंसियरली. क्योंकि ये हम किराए के लिए जो अकोमोडेशन देने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट किया था, इससे पहले वर्ड जो क्या स्टार्ट करना, अपने पॉइंट्स लिखने से भी पहले एक वर्ड ही करना. अवेलेबल 3 वर्ड्स ऐड करने हैं. अवेलेबल ऑन रेंट. तो अगर मैंने सपोज ये, आप कई बार कंफ्यूज रहते हो,
हमने रेंट पे देने के लिए तो हमने ऑलरेडी लिख दिया ये। अगर हमें चाहिए अकोमोडेशन रेंट पे, कुछ चेंज नहीं करना। अगर आपको फ्लैट चाहिए, उसी सोसाइटी में चाहिए, तो आपको सिर्फ 3 वर्ड्स चेंज करना है। 3 वर्ड्स क्या, 2 वर्ड्स चेंज करना, वांटेड या रिक्वायर्ड ऑन रेंट। बाकी अगर आपको सेम टाइप का फ्लैट चाहिए, देयर विल नॉट बी एनी कन्वर्शन इन एनी पॉइंट। तो आप क्या करते हैं, वी गेट कंफ्यूज कि सेल और परचेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। ये सिर्फ 3 वर्ड भी क्या, एक ही वर्ड चेंज करना पड़ा। रिक्वायर्ड का मतलब होता है हमें चाहिए प्लॉट, फ्लैट। और इफ वी लुक एट द थिंग, अवेलेबल का मतलब कि वो किराए के लिए खाली है। तो यू शुड बी रेडी विद बोथ द पॉइंट्स कि हमें सेल और परचेज की बात नहीं कर रहे। अगर रेंट पे लेना है या रेंट पे देना है, शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि ये एक ही तरीके की एड बनानी पड़ेगी। इफ यू वांट डिफरेंट टाइप ऑफ एकोमोडेशन, द थिंग्स विल बी डिफरेंट। अगर आपको उसी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए, then it will be very convenient for you to design the same advertisement by changing one word कि हमें टूलेट के लिए चाहिए या हमें टूलेट पे देना है। तो automatically this particular concept is crystal clear. The checklist should be crystal clear कि मैंने जो लिखना था लिख दिया। No need of counting the words, but you should be able to look at genuine words should be there, because we have to pay for each and every word if it is classical advertisement. Next step is, oh no, we are looking at you want to sell your MIG flat. अब आप बोलोगे कि MIG क्या होता है? जो फ्लैट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट में से बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटीज होती है HIG, MIG, LIG। LIG होता है लोअर इनकम ग्रुप, HIG होता है हायर इनकम ग्रुप, MIG होता है मिडिल इनकम ग्रुप। तो आपको अब बेचना है MIG फ्लैट। अब वो कहाँ है, पहले इसमें यू विल हैव टू लुक एट द थिंग्स वेयर इट इज। कि पहले हमें ये बताएंगे कि किस एरिया में हमारा फ्लैट है, तभी हमारी कॉस्ट डिसाइड होगी, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट बी क्लियर। तो यहाँ पे उसके बाद हमें एकोमोडेशन, whatever details of accommodation is concerned, the physical outlook of that particular place, and automatically then cost, then to whom to contact number. If address will be there, we will have to highlight the address. So now I think pins are in front of us. बेटे जब भी तुम्हें एडवर्टीजमेंट बनानी है, पिन या पिन पॉइंट जरूर लिखना है, तो फिटिंग आसान हो जाएगा। आपको कभी उसके लिए कंप्लीट सेंटेंसेस बेटे यूज नहीं करना। आपको कोई सिर्फ फ्रेजेस और वर्ड्स को यूज करने की जरूरत होगा, देन इट विल बी वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट। उसमें आपके इकोनॉमिकल वे से यू विल बी एबल टू पब्लिसाइज ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी फाइन मैनर। Let us design this advertisement. तो ऑलरेडी I have already told you people कि अब हमने सेल करना है, तो हमें क्या करना है, we have to write the title flat for sale. So we have to highlight the things in a crystal clear way. That should be double to your handwriting. अब ऑलरेडी टाइप ऑफ हाउस मैंने बता दिया, इट इज MIG। MIG से पहले हमें कहाँ है, सपोज दैट पर्टिकुलर फ्लैट इज in Karnal, sector 7 UE। तो इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने 3 वर्ड्स बताए थे। इसमें 3 वर्ड्स थोड़े चेंज हो गए। उसमें लिखा था अवेलेबल ऑन रेंट, यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल वर्ड लिखने की जरूरत है कि अगर आपने बेचना है। तो वहां सिर्फ ऑन रेंट हमने ऐड किया था, सिर्फ सबसे पहले अवेलेबल वर्ड को फिट करने के बाद फिर उसका जहां पे भी वो फ्लैट है, जिस सिटी में है, जो जिस एरिया में है, यू विल हैव टू हाईलाइट द थिंग। फिर टाइप ऑफ एकोमोडेशन हमने उसमें MIG ऑलरेडी कहा है,
or now details of accommodation. So you have to look at details of accommodation. 2 bedrooms. DD मतलब drawing cum dining. Then lobby. Then you will have to highlight fully marbled. Park facing. अगर कॉर्नर वाला होता है या पार्क फेसिंग होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिटी, द सेंटर ऑफ कर्नाल. जो हार्ट ऑफ सिटी में अकोमोडेशन होती है, घर होता है, उसकी वैल्यू जो ज्यादा होती है जब हम सेल करते हैं, तो यू शुड बी एबल टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो. द नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव टू लुक एट नाउ physical outlook of that particular area and the basics of the house you will have to highlight. Maybe well ventilated, maybe with facilities which will be available for the accommodation you want to sell. So next step is after that you will have to highlight cost. Cost here you should write, will be better if you will write negotiable. Negotiable, I think you are crystal clear that after meeting the things can be decided. As per the demand, the things can be liberated. So that is very fine word for the cost if we want to sell our house or any property. And next step is contact. Already if address will be given, you will have to highlight the address. If no address will be given, you will have to simply highlight contact number, only 5 digits of contact number, then cross, 5 crosses should be there. So I think then checklist, you should have to check that the each and every point of that advertisement कि मैंने जो लिखा है उस pin points के accordingly लिखा है या नहीं लिखा. So automatically things will be crystal clear. That will be very fine advertisement. यहाँ पे मैंने for sale लिखा ना, मैंने बेचना है. तो अब बेचने ये हमने बेचने के लिए क्या था, अब मुझे चाहिए सपोज फ्लैट, तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्ड यूज करना पड़ेगा जहाँ पे हमने अवेलेबल लिखा था. तो यहाँ पे भी फॉर सेल नहीं होगा, फ्लैट रिक्वायर्ड. यानी हमारे टाइटल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एक वर्ड. तो बाकी अगर मुझे ऐसा ही फ्लैट चाहिए, इसी एरिया में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेम पॉइंट्स विल बी हाईलाइटेड. एरिया अगर कुछ अलग भी है तो एरिया कैन बी चेंज. तो यानी मैं आई वांट टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि डोंट गेट कंफ्यूज विद द थिंग कि कई बार हम परचेज के लिए एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं तो वी बिकम कंफ्यूज. कोई फर्क नहीं है खरीदना और बेचना, सिर्फ यहाँ टाइटल में हल्का सा चेंज आएगा और यहाँ पे एक वर्ड का चेंज आएगा. The concept should be crystal clear regarding the thing. तो आपको मैंने जो बिगिनिंग से बताया कि एडवर्टाइजमेंट क्यों बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं बोला जाता, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर. सेकंड, आपको मैंने बताया कि हाउसेस में क्या डिफरेंशिएशन होता है, फ्लैट क्या होता है, अपार्टमेंट क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है और बंगालो क्या होता है. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. एक वर्ड और बताना, बेसिकली रेंट के लिए अगर हमें चाहिए, लीज वर्ड होता है. लीज होता है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जब हम अकोमोडेशन को रेंट पे देते हैं, तो जो हमसे अकोमोडेशन लेता है और जो ओनर होता है उसके बीच में एक डील साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दैट इज कॉल्ड लीज. तो इसमें भी कंफ्यूज ना होना कि हाँ LEASE वर्ड आ गया, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. फिर मैंने आपको रेंट वाला जो आपको कैसे फ्लैट रेंट पे देना है, सोसाइटी फ्लैट है, हाउ टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने पूरा पिन पॉइंट आपको कर दिया कि उसके लिए फैसिलिटीज अलग होती है. अगर सोसाइटी में फ्लैट अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली दैट विल बी स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी एंड पार्क, जिम्नेजियम, एवरी फैसिलिटी.
और कोई इंडिविजुअल लेवल पे आपका फ्लैट है, आपका अपना फ्लैट, आप उसको सेल करना चाहते हैं या रेंट पे देना चाहते हैं, थिंग्स विल बी डिफरेंट। उसमें स्विमिंग पूल, पार्क हाईलाइट करने की जरूरत है, वो तो आपके फिजिकल जहाँ पे वो घर बना हुआ है, वहां पे वो फ्लैट बना हुआ है, आसपास क्या फैसिलिटीज है, या तुम्हारा हमारे घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, उसी को हाईलाइट किया जा सकता है। लेकिन हम ये जनरल फैसिलिटीज हाईलाइट नहीं कर सकते उसमें। ये डिफरेंशिएशन था, क्योंकि मैंने एक आपका सोसाइटी का बुक करवाया है, एक इंडिविजुअल लेवल सेल के लिए करवाया है। और अगर आपको रेंट पे चाहिए, आई थिंक थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। अगर रेंट पे आपने देना है, देन अगेन इट इज क्लियर। टेनेंट वर्ड क्या होता है? टेनेंट होता है जो किराए पे लेता है, जिसको चाहिए। तो ऑनर होता है जिसका, जो प्रॉपर्टी ओनर, जो जो किराए पे रहने वाला पर्सन होता है, उसको टेनेंट बोला जाता है, TENANT।